Hey everyone, this is me Sumit Jha and you are watching While Learning School, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 यूनिट नंबर 4 सेक्शन नंबर 1 इज साइंस यूजफुल के क्वेश्चन आंसर्स। काफ़ी दिनों बाद मैं क्लास 8 के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के आई हूँ, क्योंकि क्लास 8 से पहले मैं 6 और 7 का कवर करवा रही थी, बट आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आई कमेंट सेशन से लेकर के व्हाट्सएप तक की क्लास 8 का कब आएगा, तो इसलिए क्लास 8 की वीडियोस जो है मैं लेकर के आई हूँ। लगातार अब आपको वीडियो मिल जाएगी क्लास 8 की भी, क्योंकि मैंने यूनिट नंबर 4 के सेक्शन 1, 2, 3 तीनों की जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर दिया है। तो डे बाय डे जो है आपको वो वीडियोस भी मिल जाएगा, सेक्शन 2 का क्वेश्चन आंसर भी और सेक्शन 3 का भी। तो फिलहाल हम सेक्शन नंबर 1 इज साइंस यूजफुल के क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये क्वेश्चंस हैं जो कि बुक में हैं, बट फिलहाल हम जो है इसके आंसर्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हमको आंसर्स जो हैं वो बताना है। तो चलते हैं नोटबुक की तरफ। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, आंसर आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वो है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन दैट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आर रिपीटली आस्क। So answer is, scientists and researchers are repeatedly asked regarding practical application of their findings. Now B, what use do the theorems taught by the ancient Greeks have? The theorems formulated and taught by the ancient Greeks formed the basics for further scientific inquiry as the world progressed. Several of the mathematical theorems of the time are conditionally put into use, for example in the planning and development of modern telephone networks. Now question number C, was the principle demonstrated by Faraday found to have any use? If yes, what was it? So answer is yes, the principle demonstrated by Faraday did find use. It is the basic principle used to produce electricity on a mass scale in every kind of power plant from hydroelectric to thermal. Now जी को देखेंगे। डी क्वेश्चन है, why did Edison not consider the strange effect that he noticed to be significant? So answer is, Edison observed that electricity flowed from the bulb's filament to the wire in a vacuum. However, he did not think it significant as he did not understand the principle behind it. Now E, how was Edison proved wrong in this matter? Answer is, Edison was proved wrong about the significance of electricity flowing from filament to wire in vacuum when John A. Fleming used this effect to create a current amplifier. Now F, the work of the physicists of the 1930s and 40s were put to good and bad use. Give one example for each. So answer is, physicists in the 30s and 40s found that massive amounts of energy could be released in nuclear fission and fusion that would create huge explosions. The discovery and the circumstances of the Second World War led to a express development of nuclear bombs. On the brighter side, it also forms the theoretical basis on which energy creation occurs in nuclear power stations, which may offer mankind the brightest hope of ample energy for the foreseeable future. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमारा ए का जो हमारा एफ तक था, ए बी सी डी जो भी एफ तक था ये हमने कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कंप्लीट द फॉलोइंग नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट। सो जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है वो हमारा क्वेश्चन है, और जो ब्लू पेन से लिखा है वो कंप्लीट द सेंटेंस का आंसर है। सो हमारा फर्स्ट है ए, साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ देयर फाइंडिंग्स। सो ए इसका हमको 2 पॉइंट में बताना है। सो फर्स्ट पॉइंट में लिखना है, फाइंड लर्निंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रॉबिंग्स द यूनिवर्स टू बी इट्स ऑन रिवार्ड। एंड सेकंड में लिखना है, नो दैट न्यू फाइंडिंग्स डिस्पाइट बीइंग इनसिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी लेड्स to further the findings and understanding that could revolutionize the world। ठीक है, इसमें जो मैंने F है छोटा लिखा है,
और के भी जो है वो स्मॉल लिखा है क्योंकि हमारा एक कंप्लीटेड सेंटेंस है, यानी कि कंप्लीटेड सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी वाक्य को बीच में छोड़ दिया गया है और उसके आगे उसको कंटिन्यू करना। तो इसीलिए जब हम बीच वाला वाक्य, कभी भी कैपिटल लेटर जो है वो बड़ा तभी होता है जब हम उसको फुल स्टॉप के बाद या जब भी हम क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तब, बट ये कंप्लीटेड सेंटेंस बीच में से होता है, इसलिए इसका एफ और के दोनों ही छोटा है। अगला है प्रैक्टिकल वैल्यू नॉट ऑलवेज प्रिडिक्टेबल, इसका भी डब्ल्यू आपका छोटा ही आएगा। वाइल थॉमस एडिसन वॉज स्क्रूड in finding the practical application of scientific principle, he did not understand or place value in the finding that electricity passed from filament to wire in a vacuum. This principle was later used to develop many technologies. नाउ सी हमारा जो है वो भी फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है और कंप्लीट सेंटेंस में इसको भी गिनेंगे। सो इसके आपको दो जो है वो ब्लैंक दिए गए हैं। तो पहला ब्लैंक में आपको भरना है करंट, में भरना है करंट रेक्टिफायर, अगले और एक में भरना है आपको टेलीविज़न, और जो हमारा सेकंड है उसमें आपको भरना है न्यूक्लियर पावर। और हमारा डी जो है, डी भी कंप्लीट सेंटेंस ही है, उसका आंसर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है। और ई जो है, ई में आपको भरना है एडवांसिंग नॉलेज विल इम्प्रूव द मटेरियल लॉट ऑफ मैन बट नीड्स टू बी गिल्डेड बाय द विजडम ऑफ मैन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा यहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस वाला क्वेश्चन है। तो कुछ डिस्कस वाला क्वेश्चन में हमारा ए बी सी तीनों हैं, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ए को देखते हैं। ए क्वेश्चन जो पूछा है वो है इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द यूज ऑफ एवरी साइंटिफिक finding. So answers in most the cases the answer is yes, but there are something we come across which may seems to be scientific but are beyond science, or we can say that we are not that updated to predict the use of that scientific finding. Now B का क्वेश्चन है हैज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑलवेज बीन फॉर गुड? सो आंसर इज इन माई परसेप्शन इट्स ए no, because many a time application of science have caused a great sort of destruction and are misused in great amount, and also they doesn't have a lot of uses, or it's valid to replace them by applications which cause less destruction. नाउ सी का भी क्वेश्चन जो है वो बड़ा है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है आंसर। अगर आपको बुक क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन शुड वी गिव अप अ साइंटिफिक वाला। इसका आंसर देखेंगे, आंसर नो, we should not just give up because of the above mentioned reasons, as it depends upon the perception of the user how to use a particular application. It's always said that we should not give up, and by some sort of improvement its negative applications can also be taken aback. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट थे जितने भी वो हमने कवर अप कर लिए हैं इस वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने इसमें नहीं करवाया है। अगर आपको उसके भी आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो पार्ट 2 मैं इसका बना दूंगी। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।